جی ناظرین، اہم اعلان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دسمبر 2020 میں کراچی آ رہا ہوں، کراچی میں موجود ہوں گا۔ کراچی میں جو لوگ میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ کال کر کے اپوائنٹمنٹ کی انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ جنوری 2021 سے علم نجوم اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ دسمبر تک ایڈمیشن اوپن ہے، لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ اس میں جو اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ محدود ہے۔ اب دنیا میں کہیں پہ بھی بستے ہیں، آپ اس میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ AQ جیم سٹونز کا بھی باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ اصلی اور معیاری نگینے اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، AQ جیم سٹون پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اسٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا YouTube چینل اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم۔ اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل سے اس سال 2021 کی سب سے بڑی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں ذکر کروں گا کہ 2021 کا سال تمام زوڈک سائنس کے لیے کیا اثرات لے کر آ رہا ہے، کیسا رہے گا 2021 کا سال آپ لوگوں کے لیے۔ لیکن اس سے پہلے مت بھولیے گا زنجانی جنتری 2021، 12 امامیہ جنتری 2021، البیرونی تقویم 2021 اور رواں ماہ کا شمارہ ماہنامہ آئینہ قسمت مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ اس کو خرید کر ضرور پڑھیے تاکہ 2021 کے حوالے سے مزید بہتر رہنمائی آپ لوگ حاصل کر سکیں۔ آئیے بڑھتے ہیں سب سے پہلے برج حمل ایریز کی جانب۔ برج حمل ایریز 2021 آپ کی زندگی کا نہایت ایک اہم اور خوشگوار سال معلوم ہوتا ہے۔ ابتدائی سال میں ذائچے میں نہایت اہم طاقتور سیاروں کے اہم بندھن یعنی راج یوگ لگے ہوئے ہیں۔ ابتدائی سال میں آپ کا حاکم سیارہ مریخ تالے میں، قمر چوتھے ذاتی گھر کا، جبکہ 10ویں کریئر اور عزت اور 11ویں خواہشات آمدن کا مشترکہ حاکم سیارہ زحل 27 سال بعد اپنے ذاتی 10ویں گھر میں ہوگا۔ اس کا قیام یہاں 17 جنوری 2023 تک رہے گا۔ ذائچے کی سعادت گزشتہ سالوں کی نسبت اس سال آپ کو کچھ زیادہ ہی ملے گی۔ آپ کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے کیوں نہ ہو، آپ کا رہن سہن، بود و باش، مشاغل اور بہت ساری مثبت تبدیلیاں آپ کی زندگی میں آئیں گی۔ آپ ان تبدیلیوں کو غیر محسوس طریقے سے محسوس کریں گے، اور آپ اگر ان تبدیلیوں کو نامناسب خیال کر رہے ہیں تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ قدرت پر بھروسہ رکھیں۔ یہ تبدیلیاں آپ کی آئندہ زندگی میں آپ کا مقدر سنوار دیں گی۔ برج حمل والے افراد جو پہلے سے ہی کوئی منصوبہ بندی کر چکے ہیں، وہ یقیناً 2021 میں اپنے منصوبوں کی تکمیل کو بتدریج مکمل ہوتا ہوا محسوس کریں گے۔ آپ کا حاکم سیارہ مریخ 1 جنوری سے لے کر 21 فروری تالے میں رہتے ہوئے آپ کی شخصیت میں کمال خود اعتمادی اور شفا یابی کی قوتوں کو اجاگر کرے گا۔ آپ کی شخصیت کی سحر انگیزی سے دوسرے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ آپ کی شخصیت دوسروں کے لیے ایک مسیحا سے کم نہ ہوگی۔ قدرت آپ پر مہربان اور آپ کی شخصیت میں مسیحا پن لا رہی ہے، تو آپ پر بھی لازم ہوگا کہ آپ اپنی فطرتی جلد بازی، جوش و جذبے کو بردباری تحمل میں بدلتے ہوئے اپنے عزیز و اقارب، دوستوں اور قریبی لوگوں کی مدد فرمائیں جن کی امیدیں آپ سے وابستہ ہیں۔ مخلصین اور بزرگوں سے نہ صرف دعائیں لیں بلکہ ان سے وقتاً فوقتاً مشاورت بھی کرتے رہیں۔ سیارہ زحل جو آپ کے 10ویں گھر میں 27 سال بعد آیا ہے، یہ بات یقینی اشارہ ہے کہ آپ اپنے مخلصین سے مسلسل مشاورت میں رہیں گے۔ ماضی کی طرح نت نئے تجربات کرنے کی بجائے دوسروں سے سیکھیں۔ آپ کے نصیب کا حاکم سیارہ مشتری بھی ذائچے کے 10ویں گھر میں 21 نومبر 2021 تک یہاں رہے گا۔ ماہ سوائے 14 ستمبر سے لے کر 20 نومبر بیرون ملک سفر، اعلیٰ تعلیم کے خواہاں طلبہ اور کاروباری اغراض و مقاصد کے لیے سفر کرنے سے پہلے صدقہ خیرات بڑھ چڑھ کر دیں۔
सयारा मुश्तरी के नेक अहम सदक़ात में दीन की खिदमत करने वाले मुस्तहिक और मुखलसीन सफ़ेद पोश अफराद की बरोज़ जुमेरात हस्ब तौफ़ीक मदद करें। करीबी मरकज़ तजल्लियात और मुक़द्दस मकामात पर हाज़िरी और दुआओं से आप अपने मुक़द्दर को मज़ीद संवार सकते हैं। अलगज़ 2021 आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन साल साबित होगा। आप अपने करियर, अपने इल्म, अपनी रूहानियत, अपनी हैसियत और शख्सियत ज़िंदगी की अपनी और अपनी फैमिली के लिए आसाइशें बआसानी हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। आपकी कम मेहनत का सिला इस साल आपको 2 गुना मिलेगा। अपने अंदर शुक्र गुजारी जितना मुमकिन हो सके बढ़ाएं और सबसे बेहतरीन शुक्र सजदा नमाज में है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सौर टॉरस की जानिब। बुर्ज सौर टॉरस 2021 आसमानी कौंसल पर शमसी ज़ायचे में सयारों की इब्तदाए साल में सयारों की नशिस्त नहायत मोहतात कुन रहने का इशारा दे रही है। ताले का हाकिम सयारा ज़ोहरा 7वें वबाल याफ्ता हमरा केतु, जबकि ताले में राहु के होने के सबब अपने शरीके कार से ताल्लुकात में मोहतात रहें, और दूसरे और 5वें का मुश्तरका हाकिम सयारा अतारद गरूब याफ्ता और 8वें नहज घर में होने के सबब माली मुआशी मामलात में एहतियात, मोहब्बत में रसवाई, साहिब औलाद अफराद को अपने बच्चों की निगहदाश्त को नज़र अंदाज नहीं करना चाहिए। तीसरे का हाकिम कमर अपने घर में होने के सबब अजीज़ व अकारब और बहन भाइयों की इजाफ़ी ज़िम्मेदारियों, चौथे का हाकिम शम्स 8वें और 8वें का हाकिम 9वें मुश्तरी हबूत याफ्ता होने से बैरून मुल्क अहम कारोबारी सफ़र मुलतवी या फ़ायदेमंद साबित होते हुए दिखाई नहीं देते। कानूनी मसाइल और परेशानियों से बचने के लिए अपने कानूनी मशीर से मुसलसल राब्ते में रहें। 12वें नहज घर का हाकिम सयारा मरीक भी नहुसत देने में किसी से कम नहीं। आपकी नज़र बंदी ख़राबी सेहत के सबब डॉक्टरों और हॉस्पिटल्स से गैर मतवक्को राब्ता रह सकता है। ताहम बैरून मुल्क हसूल इमिग्रेशन के दरीना ख्वाहां बुर्ज सौर वाले अफराद को इमिग्रेशन की अचानक खबर मिल सकती है। सयारों की गैर मामूली इब्तदाए साल में नाकिस नशिस्त इब्तदाए साल से ही किसी मजबूत प्लानिंग का इशारा देती है। आप अपनी ज़िंदगी के माजी के तमाम तजर्बात को यकजा करके अपने हाल और मुस्तकबिल की मुमकिना प्लानिंग करें। आपका ताल्लुक़ जिस भी महल्ला वकू शहर कस्बा मुल्क से क्यों ना हो, आप 2021 में होने वाली तब्दीलियों से मुतासर हुए बगैर ना रह सकेंगे। 2021 में मतवक्को नागहानी मसाइल और परेशानियों से बचने के लिए अपने घर में एक सदका बॉक्स का एहतमाम करते हुए साल के 365 दिन इसमें रोज़ाना सदका डालें, ख्वाह इसकी मालियत 1 रुपया ही क्यों ना हो, और हर माह नया चांद निकलने पर अपना यह सदका मुस्तहिक लोगों को पेश कर दें। यकीनन इस मामूली अमल की बरकत से आप सारा साल होने वाली मसाइब और परेशानियों से यूँ महफूज रहेंगे जैसे बारिश में छतरी काम देती है। नसीब के घर में 30 साल बाद सयारा ज़ोहल मुस्बत तब्दीली आइंदा 5 साल आपकी ज़िंदगी के मुस्बत टर्निंग पॉइंट हैं। ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ, तामीर व तरक्की की प्लानिंग ना सिर्फ बल्कि इन पर बतदरीज सोचना और अमल करना आज से ही शुरू कर दें। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जौज़ा जमनाई की जानिब। बुर्ज जौज़ा जमनाई 2021 में आसमानी कौंसल पर सयारों की साद और नहस नशिस्त से यूँ मालूम होता है कि 2021 आपकी ज़िंदगी का नहायत अहम लेकिन उतार चढ़ाव का साल है। इब्तदाए साल में खाना माल का हाकिम सयारा कमर अपने घर में, जबकि ख्वाहिशात करियर से ज़राए आमदन का मालिक सयारा मरीख भी अपने घर में 20 फरवरी तक रहेगा। ताले और चौथे का हाकिम सयारा अतारद 7वें ना सिर्फ वबाल याफ्ता बल्कि गुरूब भी होगा। साल की इब्तदा से ही कोई ख्वामख्वाह की उलझन और परेशानी इससे कबल कि आपके पास आए, आप 2021 की बेहतरीन हल्लुल मुश्किलात की प्लानिंग पहले से करके रखें। दीगर 5 कवाकिब ज़ोहरा मुश्तरी ज़ुहल राहु केतु सभी कवाकिब 6, 8, 12 नहस घरों में होने के सबब यूँ मालूम होता है कि आप नज़र बद
سفلی اور سحری عملیات سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ خرابی صحت یا کسی اور الجھن اور پریشانی کے سبب فوراً اپنا حسب توفیق صدقہ دیں۔ اپنے قریبی عزیز و اقارب کو صلہ رحمی کے تحت ان کی مالی اور اخلاقی مدد کریں۔ ایسے شفیق بزرگ جو آپ اور آپ سے ایسے انسیت رکھتے ہوں، خصوصاً والد والدہ سے بے پناہ اپنے لیے دعائیں کروائیں۔ آپ کے لیے قانون قدرت کے تحت سیاروں کی ناقص شعاؤں کی برسات کو روک تو نہیں سکتے، لیکن آپ کو نحوستوں اور ناگہانی آفات سے بچنے کے لیے یہ روحانی چھتری جو آپ کو ہدیہ کی ہے، آپ نے اس پر عمل کو یقیناً کرنا ہے اور بہت ساری پریشانیوں سے بچے رہیں گے۔ تاہم آپ پر بھی لازم ہے کہ اپنی فطرتی تیز طبع و تراری پر قابو رکھتے ہوئے دوسرے کو اپنا دوست بنائیں، نہ کہ اپنا مخالف۔ آسمانی کونسل پر 2021 حل المشکلات کا سال بن کر طلوع ہو رہا ہے۔ آپ کی مشکلات اور پریشانیاں خواہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، بتدریج روحانی تدارک سے دور ہو جائیں گی۔ روزمرہ اپنی عبادات میں درود شریف کثرت سے پڑھنا معمول بنا لیں اور یہ نیک عمل سارا سال جاری رکھیں۔ آئیے بڑھتے ہیں برج سرطان کینسر کی جانب۔ برج سرطان کینسر 2021 آپ کی زندگی کا نہایت اہم اور مثبت سال دکھائی دیتا ہے۔ ابتدائی سال میں ہی سیاروں کی اہم نشست، خصوصاً تالے کا حاکم سیارہ قمر اپنے برج سرطان میں منزل نصرہ یعنی پخ نشتر پر ہونے سے اور راج یوگ جیسی خوشی اور شادمانی کی کیفیت ظاہر کر رہا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتویں کا حاکم سیارہ زحل بھی اپنے گھر اور 10ویں کریئر کا حاکم سیارہ مریخ بھی اپنے ہی گھر میں ہونے سے سیاروں کی یہ اعلیٰ نشست قدرت کی کسی مہربانی سے کم نہیں ہے۔ ایسے برج سرطان والے افراد جو عرصہ دراز سے غیر مطمئن اور پریشانیاں محسوس کر رہے تھے، ان کے لیے یہ سال نہایت خوش بختیاں لیے ہوئے طلوع ہو رہا ہے۔ نہ صرف یہ کیتو اور راہو کی پوزیشن بھی 5ویں 11ویں نہایت اعلیٰ ثمرات مہیا کرنے کے سبب بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ صاحب اولاد افراد کو اولاد کی خوشی ملے گی۔ حصول انعام، لاٹری کے خواہاں برج سرطان والے افراد کو اس سال کوئی بڑا انعام مل جائے تو بھئی دس کیاس نہ ہوگا۔ آپ 2021 کی خوش بختیوں کو دگنا چگنا کرنے کے لیے ابتدائی سال سے ہی 2 نفل شکرانے کے ادا کر کے پروردگار کی جانب سے اب تک ملی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ شکر سے یقیناً نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ ایسے سرطان افراد جو عبادت و ریاضت میں بھی بارگاہ خداوندی میں وقفے سے حاضر رہتے ہیں، ان کے لیے عظیم خوشخبری ہے کہ ان کے مال و اسباب میں اس سال بے پناہ اضافہ ہوگا۔ اور ایسے سرطانی افراد جو اپنی زندگی کے کسی اہم مشن یا تکمیل کے لیے کوشاں ہیں، وہ سال کے اختتام سے پہلے اپنا مقصد پا لیں گے۔ خواہ وہ مقصد عظیم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اپنے کو درخشاں بنانے کے لیے اور توشہ آخرت کے لیے نیک اعمال بجا لانے کے لیے رہنما مددگار سال ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں برج اسد لیو کی جانب۔ برج اسد لیو 2021 آسمانی کونسل پر آپ کا حاکم سیارہ بادشاہ فلک شمس 5ویں اپنے فطرتی گھر میں نہایت 7 پوزیشن میں، جبکہ 9ویں کا حاکم سیارہ مریخ بھی 9ویں بیت النصیب میں اپنے گھر کا حاکم ہونے اور قمر 12ویں گھر کا حاکم اور اپنے ہی گھر میں ہونے سے 2021 دنیاوی اور روحانی لحاظ سے ایک عظیم خوشبختی کا سال دکھائی دیتا ہے۔ ایسے برج اسد والے افراد جو دنیا کی نمود و نمائش، دولت اور آسائشوں کی متمنی ہیں، یا پھر جو صاحب اولاد ہونے کے لیے پر امید ہے، ان کے لیے یہاں خوشبخت اولاد متولد ہو اور صاحب اولاد افراد کو اپنی اولاد کی اعلیٰ تعلیم یا پھر ان کی شادی بیاہ کی خوشیاں دیکھنا نصیب ہوں گی۔ حصول انعامات، لاٹری میں دلچسپی رکھنے والے افراد بھی وقفے سے پورا سال ان امور میں حصہ لینے سے انعامات پا سکتے ہیں۔ برج اسد والے افراد کی زندگی میں محبت کا عنصر نمایاں ہو تو انہیں فوری شادی کر لینے کا مشورہ ہے، اور ایسے برج اسد والے افراد جو دیرینہ پہلی یا دوسری شادی کے خواہاں ہیں، انہیں بھی خانگی اور ازدواجی خوشیاں نصیب ہوں گی۔
कारोबारी अगराज़ व मकासद के लिए बैरून मुल्क मुतअद्दिद नफ़ा बख्श सफ़र पेश आ सकते हैं। हज, उम्रा और ज़ियारात पर जाने वाले और ख़ुसूसन किसी रूहानी चिल्लाकशी या रूहानी बुज़ुर्गों से फैज़ की दरीना ख्वाहिश बआसानी पूरी हो सकती है। 2021 दुनिया व आखिरत के हसूल कोशिशों के लिए एक नहायत बेहतरीन साल बनकर तुलू हो रहा है। इस साल आपके लिए बेहतरीन वजीफ़ा इस वक्त स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। इस वजीफ़े को बिला नागा नमाज शब 313 मरतबा या किसी नमाज के बाद पढ़ना मामूल बना लें। सयारा मुश्तरी 12 साल के बाद शमसी ज़ायचे के 7वें घर में 6 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर और फिर 21 नवंबर से लेकर 13 अप्रैल 2022 तक यहाँ रहने से दरीना शादी के ख्वाहां लड़के लड़कियों की पसंदीदा जगह पर शादी खानाबादी यकीनी तौर पर हो सकेगी। ये सभी अयाम मजमूई तौर से आपकी इज़्ज़त व तौक़ीर में बेपनाह इजाफ़े का बाइस भी बनेगी। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सुमला वर्गो की जानिब। बुर्ज सुमला वर्गो 2021 शमसी ज़ायचे में सयारों की नशिस्त मासवाए मरीख के सभी सयारे 7 घरों में होने के सबब सारा साल नहायत अच्छे समरात देगा। इब्तदाई साल में आपके ताले शख्सियत और करियर इज़्ज़त का मुश्तरका हाकिम सयारा अतारत चौथे घर में तैतुश्वा और वबाल याफ्ता होने से 2021 का आगाज़ बेहतर दिखाई देता है। बाज़ सुमला वाले अफराद बेदिली या परेशानी से गुज़र सकते हैं और अपने वसाइल में अपने मसाइल को हल करने के लिए नाउमीदी की कैफियत को अपने ऊपर तारी करते हुए बेचैनी की कैफियत को अगर महसूस करें तो इनके लिए खुशबख्ती है कि 2021 में सयारों की नशिस्त इन्हें हरगिज़ मायूस नहीं करेगी। एक अच्छा सा ज़ुमरद या फ़िरोज़ा लेकर अपने हाथ में पहनना बाइस बरकत साबित होगा। हसूल विरासत कोई बड़ा इंश्योरेंस क्लेम लॉटरी स्कीम बग़ैर मेहनत के गैर मतवक्को दौलत मिल सकती है। 2021 ताल्लुकात कारोबारी नफ़ा के हवाले से नहायत अहम साल दिखाई देता है। कई एक पुराने लोग आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे और इनकी जगह नए बेहतर और मुखलिस लोग आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाएंगे। तीसरे केतु और नवे राहु अजीज़ व अकारब से तजदीद मरासिम वक्फे से जारी रहेंगे। अंदरून व बैरून मुल्क नहायत अहम कामयाबियाँ सफ़र आपकी ज़िंदगी और आपके नसीब को संवार सकते हैं। ऐसे सुमला वाले अफराद जो अपनी ज़िंदगी में कारहाय नुमायाँ अंजाम देना चाहते हैं वो अपने शरीक कार या शरीक हयात की मदद और रहनुमाई से कारहाय नुमायाँ देने की पोजीशन में होंगे। 2021 सयारा मरीख की आला नशिस्त से विरासती मसाइल हस्ब मंशा हल हो सकेंगे। विरासती दौलत या लॉटरी बग़ैर मेहनत के अचानक दौलत का हसूल इस साल मुमकिन दिखाई देता है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज मीज़ान लिब्रा की जानिब। बुर्ज मीज़ान लिब्रा 2021 आसमानी कौंसल पर सयारों की बेहतरीन नशिस्त राजों की खुशबख्तियाँ और सादतें आपको मुहैया कर रही है। ताले और 8वें का मुश्तरका हाकिम सयारा ज़ोहरा दूसरे वबाल याफ्ता कमज़ोर होने के सबब आपके इल्म यकीन में कमी लाने का सबब बन सकता है। ताहम दीगर सभी सयारे 2021 में खुशबख्ती का नारा लगाते हुए दिखाई देते हैं। चौथे और 5वें का मुश्तरका हाकिम सयारा ज़ुहल चौथे अपने ही घर में 27 साल बाद आने से आपकी ज़िंदगी के नशेब व फराज बदल देगा। आपका ताल्लुक़ ज़िंदगी के किसी भी शोबे से क्यों ना हो, आप ये खुशकुन तब्दीलियाँ गैर महसूस तरीके से जब पा लेंगे तो आपके इल्मुल यकीन में यकीनन इजाफ़ा होगा। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी दरीना ख्वाहिश भी पूरी हो सकेगी। इस साल जिन अफराद की शादी होगी इन्हें नहायत बाहिम्मत हौसलामंद खुशबख्त शरीक हयात मिलेगा, जिससे इनकी ज़िंदगी में इत्मीनान और सकून की कैफियत बढ़ेगी। 2021 किसी नए कारोबार की शुरुआत या जारी काम में मज़ीद सरमायाकारी करना भी नफ़ा बख्श साबित होगा। केतु दूसरे और राहु 7वें होने से अपने पार्टनरशिप के नसीब से भी
آپ کو رزق ملے گا۔ شمسی ذائچے میں راہو کی 7 نشست غیر متوقع حصول انعامات، جیک پاٹ یا وراثت سے بغیر محنت کیے اچانک دولت مل سکتی ہے۔ 2021 عجیب و غریب طریقے سے عظیم کامیابیوں کا سال معلوم ہوتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اس سال کے شروع میں اپنی کوئی غیر یقینی کی کیفیت سے نکلنے کے لیے بلا ناغہ 2 انڈوں کا صدقہ سر سے وار کر کسی پیالے میں رکھ کر گھر کی چھت یا کسی پارک میں رکھنا معمول بنا لیں۔ یہ اس سال کا بہترین صدقہ ہے۔ آپ اپنے ارد گرد دوستوں عزیزوں کا ایک مضبوط گروپ بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ کچھ میزان والے افراد سیاسی یا فلاحی میدان میں اپنی بہترین مخلصانہ خدمات پیش کر کے عزت و شہرت، سماجی سیاسی کامیابیاں حاصل کر سکیں گے۔ آپ کا مقدر اس سال جگہ جگہ آپ کا ساتھ دے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج عقرب اسکارپیو کی جانب۔ برج عقرب اسکارپیو 2021 آسمانی کونسل پر سیاروں کا نقشہ ملے جلے اثرات کا حامل، لیکن ابتدائے سال میں نصیب کا حاکم سیارہ قمر اپنے ہی گھر میں منزل نصرہ یعنی پک نشتر ہونے سے اس سال آپ کا نصیب یاوری کر سکتا ہے۔ حصول روحانیت، بزرگوں سے یا والدین سے دعاؤں کا سمندر مل سکے گا۔ آپ بھی دوسروں کو دعاؤں کا سلسلہ دیتے ہوئے اس کو آگے بڑھاتے رہیں۔ بیرون ملک کاروباری اغراض و مقاصد، تفریح اور روحانی سفر خواہ افراد کو حج و زیارات نصیب ہوں گے۔ آپ کا حاکم سیارہ مریخ 1 جنوری سے لے کر 21 فروری، 5 دسمبر سے لے کر 31 دسمبر عروج یافتہ، 20 جولائی سے لے کر 5 سپتمبر اوج یافتہ ہونے سے آپ کے اندر ہمت اور حوصلہ خود اعتمادی بڑھے گی۔ تیسرے اور چوتھے گھر کا مشترکہ حاکم سیارہ زحل 27 سال بعد شمسی ذائچے کے تیسرے گھر میں رہتے ہوئے 2021 آپ کی زندگی کا اہم اور ٹرننگ پوائنٹ سال دکھائی دیتا ہے۔ اپنی زندگی کے اہم فیصلے خصوصاً اولاد، انعام، محبت کے معاملات کو اجاگر کرے گا۔ قانونی امور مشاورت سے حسب منشا حل ہو سکیں گے۔ آپ کے حاسدین اور مخالفین زیر رہیں گے اور آشکار ہوں گے۔ تاہم خانہ مال کا حاکم سیارہ مشتری 1 جنوری سے لے کر 5 اپریل اور 14 سپتمبر سے لے کر 20 نومبر حبوط میں رہنے کے سبب ذرائع آمدن میں اضافے کے لیے پہلے سے کچھ زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ تاہم بڑھتے ہوئے اخراجات میں کمی سیارہ مشتری 6 اپریل سے لے کر 14 سپتمبر اور 21 نومبر سے لے کر 31 دسمبر جب چوتھے گھر میں رہے گا تب روپیہ پیسہ قدر آسانی سے مل سکے گا۔ آقا حاکم سیارہ 10 جنوری سے لے کر 16 جنوری زحل اور 26 مارچ راہو سے ناقص نظرات زندگی کے اہم فیصلے جلد بازی سے آپ کو کہیں سے کہیں لے جا سکتے ہیں۔ خصوصاً 30 جون سے لے کر 30 جولائی مریخ زحل مقابلہ بھی آپ کی زندگی میں ناپسندیدہ تبدیلیاں لانے کا موجب بن سکتا ہے، لہٰذا ان سبھی مشترکہ ایام میں محتاط رہیں۔ زمین، جائیداد، پراپرٹی کے حصول کے خواہاں برج عقرب والے افراد اپنے نیک مقصد کو پا سکیں گے، تاہم انہیں اپنے قدرے تھوڑے مقصد کے حصول کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ آپ جب بھی اپنی جاری اہم کاموں میں رکاوٹ محسوس کریں تو فوراً اپنے پروردگار سے رجوع کرنے کے علاوہ حسب توفیق صدقہ و خیرات ضرور دیں۔ اس سال آپ کے سبھی کام حیرت انگیز طریقے سے محنت سے زیادہ دعاؤں سے انجام پائیں گے۔ سیارہ زحل 23 مئی سے لے کر 11 اکتوبر رجت میں ہونے کے سبب اندرون و بیرون ملک سفر سے پہلے صدقہ ضرور دیں۔ کیتو تمام سال آپ کے تالے اور راہو 7ویں رہنے سے شریک حیات یا شریک کار سے اپنے تعلقات میں احتیاط سے کام لیں۔ آپس میں مابین شکوک و شبہات سے بچیں۔ آپ کے لڑائی جھگڑے سے بچوں کی نفسیات پر بہت برا اثر پڑ سکتا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں برج قوس سیجیٹیریس کی جانب۔ برج قوس سیجیٹیریس 2021 میں آسمانی کونسل پر سیاروں کی نشست ملے جلے اثرات کی حامل دکھائی دیتی ہے۔ آپ کا حاکم سیارہ مشتری خانہ مال میں 12 سال کے بعد آ تو گیا، لیکن یہاں پر یہ 1 جنوری سے لے کر 5 اپریل اور 14 سپتمبر سے لے کر 20 نومبر حبوط یافتہ اور 20 جون سے لے کر 18 اکتوبر
रज्जत में भी रहेगा। इब्तदाई साल में माली और ख़ानदानी मामलात पर तवज्जो ना दी गई तो कुछ अहम कीमती अशिया आपके हाथ से खुदा न ख्वास्ता निकल सकती हैं। साल के इस अहम अरसे को अगर आपने अच्छे तरीके से प्लान कर लिया तो बाकी मजमूई तौर पर सारा साल सादतें पाएंगे। सयारा ज़ुहल दूसरे और तीसरे घर का मुश्तरका हाकिम 27 साल के बाद दूसरे फाइनेंस और फैमिली स्टेटस के घर में आने से आप तवीलुल मयाद मौशी प्रोग्राम की प्लान ना सिर्फ करेंगे बल्कि इन पर अमल दरामद करना भी नेक साबित होगा। इब्तदाई साल ही में सयारा मरीख 5वें इनाम मोहब्बत औलाद का मालिक आपको जज्बाती इनामी स्कीमों की जानिब मतवज्जो रखेगा। स्टॉक शेयर से ताल्लुक़ रखने वालों को कमज़ोर शेयर में तवीलुल मयाद मुद्दत के लिए सरमायाकारी करना अगर चाहें तो अगले 2 सालों में इसका अच्छा समर पा सकते हैं। आपको कोई बड़ा इनाम भी इनामी चांसेस में हिस्सा लेने से अचानक लग सकता है। सयारा ज़ुहल 23 मई से लेकर 11 अक्टूबर रज्जत में रहने के सबब आपकी दूसरों से वाबस्ता अहम माली तवक्कुआत पूरी होती हुई दिखाई नहीं देती। इस दौरान गलत सरमायाकारी और किसी को कर्ज देना नुकसान का सबब बन सकता है। बुज़ुर्गों और मुखलिसीन की मुशावरत अगरचे आप जल्द लेने में झिझक महसूस करते हैं, आपको मुखलिसाना मशवरा है कि इब्तदाई साल से ही अपने हालात और माहौल के मुताबिक अपनी 2021 की प्लानिंग में अपने मुखलिसीन को ज़रूर शामिल करें। और एक अहम बात, छठे 12वें राहु केतु होने के सबब आप नज़र बद, सिफली और सहरी अमलियात, सहर जादू के सबब कोई एबनॉर्मल वाक़या महसूस करें तो फ़ौरी तौर पर सदका खैरात के साथ अपनी इबादत और रियाज़त को बढ़ाएं। अगर आप किसी मुर्शद कामिल या रूहानी बुज़ुर्ग से मशवरा लेने में ताख़ीर करें तो आप पर लाजिम होगा कि ऐसे वक्त में फ़ौरी तौर पर सूरह बकरा की तलावत अलियल सुबह 40 दिन मुसलसल की जाए या ऑडियो रिकॉर्डिंग और उसके साथ एक पानी का प्याला रख दे और दुआ के बाद इस पर दमशुदा पानी को पिएं और घर वालों को भी पिलाएं। दमशुदा पानी को अपने घर में स्प्रे करना भी ना भूलें। इस हुस्न अमल से आपकी हर तरह की नागहानी आफात से आप अपने आप को महफूज पाएंगे। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न की जानिब। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न 2021 आसमानी कौंसल पर ताले और दूसरे का मुश्तरका हाकिम सयारा ज़ुहल ताले में 27 साल बाद 1 जनवरी से लेकर 17 जनवरी 2023 तक यहाँ तवील अरसा अपने ही घर में मुकीम रहते हुए आपकी किस्मत ना सिर्फ संवार दे बल्कि मौशी माली फ़वाइद के अलावा आमदन और फैमिली या ख़ानदान की खुशियाँ पा सकेंगे। ऐसे बुर्ज जद्दी वाले लड़के लड़कियाँ जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, यकीनी तौर पर इस साल में खानगी और अज़दवाजी खुशियाँ नसीब होंगी। चौथे घर में सयारा मरी की 7 पोजीशन ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी और हस्ब हैसियत आरामदेह सवारी का हसूल भी बआसानी मुमकिन हो सकेगा। आपकी कई दरीना ख्वाहिशात भी तकमील पाएंगी। 1 जनवरी से लेकर 5 अप्रैल और 14 सितंबर से लेकर 20 नवंबर सयारा मुश्तरी की ताले में आमद नागहानी अखराजात पेश आने का इशारा है। अपने बढ़ते हुए अखराजात पर काबू पाएँ। सयारा मुश्तरी 6 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर और 21 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर शमसी जायचे के खाने माल में रहने से आपकी की गई मेहनत से ज़राए आमदन में इजाफ़ा दिखाई देता है, बल्कि हल्का अहबाब में वुसअत, ख़ानदान में इजाफ़ा जैसी खुशियाँ नसीब होगी। और राहु तमाम साल 5वें और केतु भी मुकाबल 11वें घर में सारा साल रहते हुए गैर मतवक्को तौर से आपको औलाद माल की खुशियाँ नसीब होंगी। प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त या हसूल इनाम जैसी स्कीमों में हिस्सा लेने से आपका कोई बड़ा इनाम निकल सकता है। अपने माहौल और हालात व वाक़यात से आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। कुछ तकलीफ़ दे तजर्बात आप सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। दोस्तनुमा दुश्मन आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे और कानून कुदरत के तहत आपको अच्छे मुखलिस बुज़ुर्गों और दोस्तों की शफ़क़त मुयस्सर आएगी।
दूसरों से ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता करने की बजाय अपने मालिक व खालिक की कोई अजीम तस्बीह या अपना इस्म आज़म आप इदारे से मुफ्त मालूम करने और इसको पढ़ना अपना मामूल बना लें। अपनी ज़िंदगी के कामयाबी के राज जानने के लिए कुरान पाक को बमा तर्जमा रोज़ाना पढ़ना शुरू करें, ख्वाह इसमें आपको 1 माह से 6 माह ही क्यों ना लग जाए। साहिब नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जब मेरा दिल चाहे कि मेरा रब मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। मौला अलैहिस्सलाम के इस फरमान को सामने रखते हुए आप हैरत अंगेज़ तरीके से इस राज को पा लेंगे। अपने मालिक व खालिक से मुशावरत लेना आपके दीनी और दुनियावी कामों को संवार देगा। ना सिर्फ आपकी रूह को सुकून मिलेगा, 12 मंतक़ुल बुरूज में आपका वाहिद बुर्ज ऐसा है जिसके 12वें का हाकिम सारा मुश्तरी है। आप कोई भी रूहानी मंजिल पाने के लिए नमाज शब पढ़कर जो भी दुआएं या चिल्ला मामूल बना लें, आप अपनी दुआओं को अपने और दूसरों के लिए भी मुस्तजाब होता हुआ देखेंगे। आपका हाकिम सारा ज़ुहल 23 मई से लेकर 11 अक्टूबर ताले में रुजत याफ्ता रहने से अपने अहम कामों की तकमील में जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें। यूँ 2021 को आप ज़रा सी प्लानिंग और मुशावरत से अपने लिए कामयाबियों का साल बना सकते हैं। आइए बढ़ते हैं बुर्ज दल्व एक्वेरियस की जानिब। बुर्ज दल्व एक्वेरियस 2021 की आसमानी कौंसिल पर सयारों की सबसे अहम फल्कियाती नशिस्त के लिहाज से 12 मंतक़ुल बुरूज में आपका शमसी जायचा आपके हाकिम सारा ज़ुहल की 12वें नशिस्त के एतबार से शमसी साड़सती की निशानदही करता है। साड़सती का इल्मी दुरुस्त नज़रिया बहिसाब वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही पाया जाता है। उसने इत्तफ़ाक़ और इनकलाबात दुनिया के साथ आपका ये सालाना अहवाल भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के तहत ही पेश किया जा रहा है। सयारा ज़ुहल आपका फ़ेली साद सयारा और इसका हाकिम जो सयारा आसमानी कौंसिल पर एक चक्कर 29.5 साल पर इसका मुहीत होता है। इस एतबार से आप इन दिनों अपनी शमसी साड़सती से गुज़र रहे हैं। आपकी साड़सती 5 अक्टूबर 2029 तक जारी रहेगी। बहुत सारे अहम हम ख्याल मुनजमीन का ख्याल है कि बुर्ज मैज़ान, बुर्ज कौस, बुर्ज जद्दी और बुर्ज दल्व वालों को साड़सती मुतासिर नहीं करती। यहाँ हम शमसी साड़सती का बता रहे हैं, जबकि इसका दुरुस्त इल्म नजूम में कादा 12 बुरूज में सयारा कमर की नशिस्त किया जाता है। ज़ुहल जब भी कमर से 2.5 साल पीछे, 2.5 साल कमर वाले घर में और 2.5 साल कमर से अगले घर में मौजूद हो तो ये मजमूई अरसा 7.5 साल कहलाता है। आप पसंद फरमाएँ तो इदारा आयना किस्मत या किसी भी अच्छे मुनज़्ज़म से बाहिसाब वैदिक एस्ट्रोलॉजी अपनी साड़सती का तयन करा सकते हैं। मुख्तसर साड़सती जब भी किसी शख्स के दायचे में आती है तो कामों में ताख़ीर, अल्तवा और रुकावटें परेशानियाँ लाती है। सयारा ज़ुहल सारा साल शमसी जायचे के 12वें रहते हुए दूसरे, छठे और 9वें 12वें घर को मुतासिर करेगा, लिहाजा ज़राए आमदन कम और अखराजात बढ़ सकते हैं। कर्ज़ लेना और देना मुनासिब ना होगा। लंबे सफ़र अशद ज़रूरत के तहत और सदका खैरात देकर करें। आपके खुफिया दुश्मन अपने बंद इरादे के तहत खुदा न ख्वास्ता आपको नुकसान देने की कोशिश कर सकते हैं, मुहतात रहें। सबसे अहम बात कि बुर्ज दल्व वाले अफराद जो किसी रूहानी या रियाजत और चिल्लाकिशी में कोशिश फरमाएंगे, इन्हें अपनी रूहानी रियाजत में कामयाबियाँ नसीब होंगी। बैरून मुल्क हसूल इमिग्रेशन के लिए की गई कोशिशें भी बराबर साबित हो सकती हैं। इब्तदाए साल ही से सयारा मरीख की आपके लिए 7 पोजीशन 1 जनवरी से लेकर 21 फरवरी, 20 जुलाई से लेकर 5 सितंबर, 5 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर बनने से आपके अंदर हिम्मत हौसला बढ़ेगा। अजीज़ व अकारब बहन भाइयों की माली इखलाकी मदद, सिला रहमी करके आप रूहानी खुशियाँ भी पाएंगे। मजमूई तौर पर 2021 बुलंद अखराजात का साल दिखाई देता है। अब यह आप पर मुनहसर है कि आप इब्तदाए साल से ही कुछ ऐसी प्लानिंग कर लें कि अपनी आमदन और अखराजात में तवाज़ुन कैसे पैदा करना है। राहु चौथे और केतु 10वें घर में सारा साल रहने से
ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी और काश्तकारी फसलों बागात की नज़र ज़रूर उतारें। लंबे सफ़र करते हुए अपनी सवारी का भी सदका ज़रूर दें। ऐसे खुशनसीब जिनकी वालदा हयात हैं अपनी वालदा से या बुज़ुर्गों से अपने लिए ढेरों दुआएं कराएं। केतु के 10वें नशिस्त आप अपने पेशावराना करियर को मज़ीद बेहतर करने के लिए बहुत सारे अहम इक़दामात करना पसंद करेंगे। अपने हम ख्याल और मुखलिसीन से सरमायाकारी करते वक्त मुशावरत ज़रूर करें। ये मुशावरत आपके लिए शिफा का काम देगी। आइए बढ़ते हैं बुर्ज हूत पाइसिस की जानिब। बुर्ज हूत पाइसिस 2021 की आसमानी कौंसल पर सयारों की नशिस्ती एतबार से आपका हाकिम सयारा मुश्तरी इब्तदाई साल में हबूत याफ्ता होकर 11वें घर में 1 जनवरी से लेकर 5 अप्रैल, 14 सितंबर से लेकर 20 नवंबर बैतुल उम्मीद के घर में होने से आपकी दूसरों से वाबस्ता उम्मीदें पूरी होती भी दिखाई नहीं देती। दानिशमंदी इसी में होगी कि आप दूसरों पर भरोसा करने की बजाय अपने वसाइल के अंदर रहते हुए अपने मसाइल को हल करें। ताहम खाना माल का हाकिम मरीख अपने घर में इनाम और मोहब्बत का मालिक कमर, अपने घर में ख्वाहिशात का मालिक ज़ुहल, अपने घर में सयारों की बेहतरीन नशिस्त आपको गैर मतवक्को इनामी दौलत, लॉटरी, प्राइज़ बॉन्ड जैसे जैकपॉट की सूरत में फ़वाइद देते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे बुर्ज हूत वाले अफराद जिन्हें ज़राए आमदन बढ़ाने, हसूल इनामात और साहिब औलाद होने या औलाद की खुशियाँ पाने की आरज़ू हो और मोहब्बत जैसी पसंद की शादी के इम्कानात भी इब्तदाई साल के पहले 2 महीनों में रोशन दिखाई देते हैं। बशर्ते मौसम बहार में शजरकारी शर्त है। अपने मुखलसीन और बुज़ुर्गों से दुआएं लेते रहें। शमसी साड़सती अगरचे चाँद को मरकज़ बनाकर देखी जाती है, शमसी जायचे के एतबार से 6 अप्रैल 2021 सयारा ज़ुहल शमसी जायचे के 12वें आने से एक तवील 7.5 साल ख़राब दौर साड़सती आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो जाएगी। कबल अज़ वक्त आपको मुतल्ला कर दिया गया है कि आप अपने आने वाले ख़राब वक्त का बेहतर तरीके से प्लान कर सकें। गो 2022 में साड़सती की शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं होगी, ताहम 29 अप्रैल 2022 सयारा ज़ुहल जैसे ही बुर्ज दल्ब में दाखिल होगा और दोबारा रुजत के बाद 17 जनवरी 2023 फिर शमसी जायचे के 12वें बुर्ज दल्ब में सयारा ज़ुहल की आमद से नहूसत साड़सती की शिद्दत बढ़ सकती है। कामों में ताख़ीर, अल्तवा, रुकावटें, परेशानियां अचानक बढ़ना शुरू हो जाएंगी। कानून कुदरत के तहत जैसे ही बारिश को छतरी से कदरे रोका जा सकता है, इसी तरह साड़सती का रूहानी तदारुक भी आप किसी मुर्शद कामिल या रूहानी बुज़ुर्ग या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से करवा कर मुमकिन परेशानियों और ख़राबियों से महफूज रह सकेंगे। साल कबल आगाही आपको नेक नियति से दी जाती है कि आपकी उम्र भर की मेहनत की कमाई जल्दबाजी, जज्बाती और किसी साजिश से ज़ाया ना होने पाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।